32nd Foundation Day of Guruwa observed. The 32nd Foundation Day of Guruwa, a non-profit organization based at Lamding, working throughout the district of Karbi Anglong and Dima Hasao, was observed in a befitting manner here at Lamding on Thursday. The day's program was started with a flag hoisting by founder president of Guruwa, Ashish Day, in presence of huge gatherings of members and well-wishers of Guruwa. Swapankar, the former MLA of Lamding, attending the event as a chief guest, inaugurated a public meeting and discussion with the senior citizens of Lamding. Gopal Acharji, the president of NF Railway Pensioners Association, Anu Bishwas, the senior journalist, Ruchika Nyok, the former secretary of Voluntary Health Association of Assam, Naren Ganguly, Milan Sen, Tharun Chowdhury, the branch secretary of NF Railway Mazdoor Union, Samir Loh, the divisional secretary of NF Railway Employees Union, Swadeep Hasamjan, the journalist, attended the event as a guest of honor, while Ashish Day, the founder president of Guruwa, conducted a meeting. All the speakers at the meeting appreciating the activities of the Guruwa in humanitarian needs and wished the organization to work forever for the cause of human needs. The speaker also dwelled at length the brief journey of the organization and appealed to the people to come forward in support of such organizations which are dedicated to human cause. Chief Guest Kaur said, "We are really in need of such selfless and dedicated organization for the overall development of the society." मेरा ख्याल से तो अभी इस साल में 32 साल हुआ है। तो 32 साल में पहले जैसा घरवा का प्रोग्राम हो रहा था, इससे भी अच्छा हो रहा था। अभी फिर भी आज इस साल में जो फंक्शन जो हो रहा है बहुत अच्छा लगा हमको, क्यों हम तो पहले 2011 से 16 तक मैं लमडिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए था। उस टाइम में तो बहुत फ्लावरसिंग प्रोग्राम हो रहा था। अभी कुछ कम गया, लेकिन अच्छा होगा और मेरा ख्याल से मेरा उम्मीद है कि आगे और बढ़ते जाएगा इसकी प्रोग्राम। और वो जो सोशल वर्क जो घरवा कर रहा है, ऐसा एनजीओ तो इस अभी एनजीओ नहीं है, एनपीओ है, एमपीए नॉन प्रॉफिटेबल। तो घरवा जैसा मैंने एमपीए को जो फंक्शनिंग जो हो रहा है समाज कल्याण के लिए, आम जनता के लिए, सोसाइटी के लिए और मैंने पृथ्वी के लिए, समाज के लिए तो बहुत अच्छा है। Talking to media, founder president Ashish Day assured that the people of Dima Hasao, who suffered a lot during these recent floods and landslides in the district, to extend their support for all-round development of the people. He also added that the people of Dima Hasao could be in need of economical upliftment post this natural disaster, and the Guruwa was planning to support them in this regard in near future. Mention may be made here that Guruwa has been working in Dima Hasao since long, but during these recent calamities from May had made its activities available from the day one of the crisis. हम सबको पता है कि डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली एक नेशनल कैलामिटीज हुआ है। उनमें से सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स हम लोग एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमने देखा कि गुरुवा एक लमडिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो डिमा हासाओ में बहुत सारा जगह में, जहाँ इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शायद बहुत ज़्यादा जगह में लोकेशंस में वो नहीं पहुंच पाए, उसी जगह पर पहुंचा है। और ग्रास रूट लेवल में रिलीफ दिया है। रिलीफ के साथ साथ में बहुत जो एक लाइवलीहुड जो ज़रूरत है लोगों के लिए, जो रोज़ी रोज़गार करने के लिए या फिर उसका जो भी एक खाने पीने का सामान उन्होंने दिया है। सिर्फ आज हम इसलिए उसका बात कर रहे हैं क्योंकि आज गुरुवा का फाउंडेशन डे है, 32 फाउंडेशन डे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष दे, हम वैसे दादा बोल के बुलाते हैं पॉपुलरली। डिमा हासाओ का जानी पहचानी चेहरा हो सकता है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उसे हम जानते हैं कि अभी इस बार जो बात करने वाला है उसकी डिमा हासाओ में आपका शायद बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है, लेकिन हम ये भी पूछना चाहेंगे आज 32 फाउंडेशन डे आपका हो रहा है, स्पेशल क्या क्या है? आप इतना आपका साथ स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम आप साइड स्टार्टिंग से है, आज क्या कहेंगे? इतना बड़ा एक लड़का जन्म होते हुए थे, बड़ा हो गया, जवान हो गया अभी। डेफिनेटली आज तो बड़ी खुशी की दिन है। जो जब हम लोग 91 में
इस संस्था को बनाए थे, तो हमने कभी सोचा नहीं था जो 32 साल ये संस्था टिक सकेगी। और टिकना नहीं है, सबसे बड़ा है जो कम्युनिटी के लिए जो काम करना है। और उसमें भी देखिए हमारा थ्रस्ट एरिया है, हमारा फोकस एरिया है कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ। तो हमको जब स्टडी कर रहे थे असम के ऊपर, तो हम लोगों को लगा जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में काम करना सबसे ज़रूरी है, दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग। सो दिमा हसाओ में हम लोग लगभग 97-98 में हाथीखाली, लांगटिंग ये सब में हम लोग महिलाओं का ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट का मदर एनजीओ भी बना हेल्थ के बारे में। हमारा हपलॉन्ग में भी ऑफिस था। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हम लोग टैकल कर चुके हैं। इवन डीसी ने हमको ये जिम्मेवारी दिया था जो आप लोग कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको ज़रा देखिए। तो आज के दिन में यहाँ खड़ा होकर आप लोगों का दिमा हसाओ का जो सेवा हम लोग कर सके हैं, बहुत जगह जो सरकार जहाँ नहीं पहुँच सकी थी वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी भी मुझे अफसोस है जो हम बहुत जगह नहीं जा सके। जैसे खेपड़े हम लोग नहीं जा सके हैं। हम लोग 1 महीने कोशिश करने के बाद बड़ाइल वैली में पहुंच सके हैं। उसके लिए भी हमको थोड़ा सा मदद लेना पड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन धीरे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे डिपेंडेंस भी बढ़ रहा है। हमको रोज़ कहीं ना कहीं का गांव बूढ़ा लोग फ़ोन करते रहे। आज भी हमको 2 गांव बूढ़ा फ़ोन किया जो हम लोग का कब घर बना देंगे, कब। हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किए हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शन एड कि हम लोग करीब 400 टेम्पररी शेल्टर बना देंगे। फिर जैसा है लाइवलीहुड का, सिर्फ शेल्टर बनाने से तो नहीं चलेगा, लाइवलीहुड के मिशन के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। और अनूप विश्वास के कांटेक्ट है डॉक्टर काकोती, तो उनके साथ और एग्रीकल्चरल ऑफिसर लोग के साथ हम लोग काफ़ी चर्चा हुई है इसके बारे में, कैसे हम लोग ये लाइवलीहुड फिर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही लक्ष्य है, वो है जो दिमा हसाओ को फिर अपने पाँव में खड़ा करना। उसके लिए हम लोग इको टूरिज़्म, एथनिक टूरिज़्म, वीविंग टूरिज़्म, ये सब के बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा रिजोल्यूशन तो ये रहेगा जो 32वां, जो 33 तक हम लोग दिमा हसाओ का इकोनॉमी को तो कम से कम हेल्प करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों की मदद चाहिए। ज़्यादातर जो आप लोग हैं उन लोगों का मदद चाहिए, जो हम लोग सही जगह से पहुंच सकेंगे और सही काम कर सकते हैं। धन्यवाद। They had provided very essential relief materials to a huge number of people in Dima Hasao. Now, they also are planning to support in building houses for the victim families of Dima Hasao. He also promised to stand by the people of Dima Hasao when they need. शुरुआत से लेकर आज का दिन में क्या चैलेंजेस कैसा है? देखिए, चैलेंजेस लगभग एक ही है, लेकिन एक चीज़ है जो पहले जो दिमा हसाओ में एक जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड एक मिसबिलीव था। जो आदमी लोग हम लोग जाते थे तो वो हम लोग को बिलीव नहीं करता था, सोचा जो ये भी कोई धंधा से आया होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रस्ट अब बन गया है। जो गांव में किसी भी आप जानते हैं, जो माहौर के एक विलेज में, कुकी विलेज में, हमने जब रिलीफ दे के गया है पहले दिन, तो हम नहीं गए थे, गाड़ी गई थी। तो नेक्स्ट दिन जब हम पहुंचा तो हम एक दुकान में चाय पी रहा था, तो सबको पता चला, सब ऑटो लेके पहुंच गए और हमको थैंक्स देने लग गए कुकी लोग। और इतना इमोशनल स्टेज था जो आप लोग सोच नहीं सकेंगे जी, इतना इमोशनल स्टेज था। या तो जोहानन करके एक बच्चा था जिसका वो हम देखा बहुत डिप्रेस्ड है शेल्टर होम में, तो हमने उसके माँ से पूछा उसको क्या हुआ है, तो बोला कुछ नहीं, वो खेलने नहीं सकता है ना, इसलिए ऐसा करता है। तो हमने नेक्स्ट डे ही लमडिंग से काफ़ी सारे खिलौना खरीद चुके लिए, टॉयज़, और जाके उन लोगों को बांटा। तो उसके मन में जो खुशी हुई थी वो खुशी शायद हमको ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगी। और उसकी माँ जब बार बार बोल रही थी, वो था उस दिन
डैनी था, तो वो बोला जो तुम उसको थैंक्स दो, वो अपने कुकी भाषा में बोल रहे हैं। तो बोला नहीं, हम उनको थैंक्स नहीं देंगे, हम रात को भगवान को बोलेंगे जो उसको लंबा उम्र दे। ये सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी की कामयाबी है। थैंक यू। इसमें हम अब अगर हम बात करें तो आज 32 ईयर्स है, लेकिन और आगे आपने बोला था कि बहुत सारा प्लानिंग है डीमा स्पेशल डीमा हासाओ के लिए। वैसे तो हम सभी लोग डीमा हासाओ के लोग आपको वापस थैंक्स वापस गिविंग देने के लिए वो बस में नहीं, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ मदद किया है। और आगे क्या विचार कर रहा है ये गोरवा का लेकर के? गढ़वा तो एक्चुअली अभी हम लोग नेक्स्ट कई साल हम लोग फोकस देंगे डिमा हासाओ कार्बी आंगलोंग के ऊपर में। लेकिन चूंकि डिमा हासाओ नेचुरल डिज़ास्टर के लिए ख़त्म हो गया है, इसलिए जैसे हम लोग सोच रहे हैं जो ये वन महोत्सव हो रहा है, लेकिन हमको लग नहीं रहा है वन महोत्सव कोई ये कामयाब होगा। तो देखिए, हम इसके साथ एनरेगा को जोड़ना चाहते हैं। जो एनरेगा के माध्यम से अगर डिप्टी कमिश्नर वहाँ प्लांटेशन स्टार्ट करे और डीओफओ उसको प्लांट्स दे, तो ये एक इकोनॉमिक जनरेशन भी होगा, इको जनरेशन भी होगा। तो इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। और ये मानसून का टाइम है, अब अगले 2 महीने हम लोग प्लांटेशन कर ही सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक तो बड़ा मिशन है। और सेकंड है जो हम बोले आपको इकोनॉमिकली इन लोगों को कितना हम स्टेबल कर सकते हैं, इसको भी देखना है। आगे हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे जो यहाँ के कपड़े जो अभी तक जीआई ट्रेडमार्क नहीं मिला है, इन लोगों को जीआई ट्रेडमार्क मिला है। जी बिल्कुल, ये था आशीष कुमार डे, जो गुरुआ का मेन